Hi everyone. Look, we have discussed topic probability there, and till now we have discussed conditional probability. Yesterday we have those problems based on conditional probability. Today again we are going to discuss two problems which are asked in board examination as well as it's in our NCRT problems. Then after that, in today's class we are going to be discuss about multiplication theorem of probability, and then we are also talking about when our two independents are said to be when our two events are said to be independent and or not or maybe dependent. Then we are talking about then after that after solving two questions which are based on conditional probability, then we have seen then how can we show that the given events are independent or not independent, means they are dependent. And we are also talking about multiplication theorem there. Then we start with one of the NCRT problems today. It's given that an instructor has a question bank. An instructor has a question bank consisting of a 300 easy true false question. Okay, we have a 300 easy true false questions. 200 difficult true false question, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice question, 500 easy multiple choice questions, MCQs there, and 400 difficult multiple choice question. Look, an instructor having a question bank in which it's have a 300 easy true false question, 200 difficult true false question, and 500 easy MCQs and 400 difficult MCQs there. Then look, what it is talking about that if a question is selected at random. Now it's asking question that if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice. हमें probability फाइंड आउट करनी है easy question को. It's given that multiple choice in MCQs. It's given that the question must be a multiple choice question. ठीक है बेटा. तो अभी क्या करते हैं, इवेंट्स फॉर्म करते हैं कि हम आप लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देयर वी हैव इन सैंपल स्पेस. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 300 plus 200, 500, 500 plus 500, 1000 plus 400 means we have there 1400 questions in question bank there. And then we are going to form event there. Let E. What do we select? E as we selecting going to E what? An easy question. Let even our E represent an easy question. We have assumed that our event E represent an easy question and we are going to take an F. Multiple questions की बात हो रही है, then take F MCQs question. E represent कर रहा है हमारा easy questions को और F शो कर रहा है multiple choice question को. Then what about E intersection F? क्या represent करेगा? It's represent easy multiple चॉइस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, अभी हमारे ई इंटरसेक्शन पे कितने क्वेश्चन आने वाले बेटा? जो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी हैव 500. तो ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ में कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? देयर आर 500 क्वेश्चन विच आर एन इजी मल्टीपल क्वेश्चन. और जो हमारा इवेंट ई में क्वेश्चन जो हमारा एक इससे हम लिख लेते हैं वहाँ पे इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो जो हमारी इवेंट ई में कि जो क्वेश्चंस हमारी इजी है, ये रिप्रेजेंट एन इजी क्वेश्चन. तो इजी क्वेश्चन कितने हो गए? 300 इजी ट्रू फॉल्स, 500 MCQs. तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं इजी क्वेश्चन? दे आर 800 इजी क्वेश्चंस. एफ इवेंट हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? इजी प्लस डिफिकल्ट 500 400, वो हमारे 900 है.
ठीक है। अभी अब हम बात करते हैं हमें जो निकालना है, इट्स व्हाट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन निकालने हैं, मीन्स जो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, एंड इजी क्वेश्चन गिवन दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हाउ कैन वी डिफाइन आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। E by F is given by probability of E intersection F to the probability of F। ठीक है बेटा, probability of E intersection F कितने हैं? फेवरेबल 500 है, और टोटल कितने हमारे पास है? देयर आर 1400 क्वेश्चन। probability of F, F क्या है? MCQs, टोटल 900 क्वेश्चन, और सैंपल स्पेस में 1400 क्वेश्चन। ये कैंसिल हो गया, देन वी हैव 500 to 900, देन वी गेट 5 by 9। मीन्स जो इंस्ट्रक्टर के पास प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी क्वेश्चन दे, और गिवन है कि वो इजी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 5 by 9। इट्स गिवन बाय 5:9। ठीक है बेटा। लुक वी आर नाउ गोइंग टू टेक नेक्स्ट अनदर क्वेश्चंस, एंड आप बाकी क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करिएगा बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देयर। ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बोर्ड में भी आ चुका है। एज्यूम दैट ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और अ गर्ल। क्वेश्चन में गिवन है कि आप ये मान के चलिए कि जो भी चाइल्ड हम इक्वली, जो चाइल्ड है हमारे पास वो इक्वली लाइकली है, या तो लड़का है या तो लड़की हो। इफ अ फैमिली हैज 2 children, what is the conditional probability that both are girl, and given that first is, देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? we have to find out the probability both are girls, और given that यहाँ पे 2 चीजें given that है, and given that first में given that है the youngest is girl, second क्या है? at least one is a girl। ठीक है, दोनों बोथ आर गर्ल्स हो, एटलीस्ट वन गर्ल हो, इस पर फाइंड आउट करना है। देन तो पहले सैम्पल स्पेस क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात करते हैं, सैम्पल स्पेस फॉर्म करते हैं। देन क्वेश्चन था ये हमारा कि एज्यूम दैट ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 children। या तो लड़का या लड़की हो, तो क्या होगा? 2 चिल्ड्रन की फैमिली है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनने वाला? दोनों बॉयज़ हो, दोनों गर्ल्स हो, एक बॉय हो, एक गर्ल्स हो, एक गर्ल्स एक बॉयज़ हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ले लिया कि B1 B2 दोनों बॉयज़, मतलब पहला B मतलब एल्डर आपका लड़का हो, छोटा हो, यंगर भी लड़का हो, या G1 G2 बोथ आर गर्ल्स, एल्डर भी गर्ल हो, यंगर भी गर्ल्स हो, या क्या कर लें B1 B2 ले लिया, दोनों बॉयज़ गर्ल्स हो, या दोनों गर्ल्स हो, या तो G2 B1 ले लें। ठीक है, वी टेक B1 B2 G1 G2, और दूसरा क्या बना सकते हैं? G1 G2 भी है, B1 B2 है, G2 B1 है, तो या तो G1 B2। ठीक है, बात समझ आए मेरा सैम्पल स्पेस में? बड़ा वाला B1 मतलब या आपका एल्डर बॉय हो, यंगर भी बॉय हो, एल्डर गर्ल्स यंगर भी गर्ल हो, यहाँ पे क्या हो? एल्डर बॉय हो, B1 ले लिया, छोटी वाली G2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। लड़का बड़ा, लड़की छोटी हो, लड़की बड़ी हो, लड़का छोटा हो, तो ये हमारी सैम्पल स्पेस है। ठीक है, वी हैव फॉर्म्स B1 B2 G1 G2 G2 B1 एंड G1 B2 देयर। अभी सैम्पल स्पेस हमारे पास है। इवेंट्स पे आते हैं। इट्स गिवन दैट वी हैव टू बी इन क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो हमें इवेंट क्या करेंगे? पहले ये फॉर्म करेंगे, बोथ आर गर्ल्स। तो इस बोथ आर गर्ल्स में हमारे पास क्या आने वाला है? इस इवेंट्स में हमारे पास आने वाला है G1 B। दूसरा B पढ़ रहा है द यंगेस्ट इज गर्ल,
द यंगेस्ट इज गर्ल। अब इस इवेंट में क्या आएगा, द यंगेस्ट इज छोटी वाली गर्ल्स हो, देन इट्स G1 G2, उसमें बेटा हमारे वाला है G1 G2 आएगा। और क्या आएगा, यंगेस्ट इज गर्ल की बात कर रहे हैं तो G1 G2 होगा। और क्या हो जाएगा उसमें, यंगेस्ट इज गर्ल देन G1 G2 एंड यहाँ पे लिया है G2 B1। G2 मतलब सेकेंड लड़की है, यंगेस्ट। तो हमारे पास दो चांस है, क्या है, G1 G2 एंड G2 B1 या B1 G2 जो भी लिखे आप। इवेंट सी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ठीक है। एटलीस्ट वन इज ए, मतलब दोनों में एक, मतलब दोनों में एक लड़की, एटलीस्ट मतलब कि दो लड़कियां हो सकती हैं। तो उसमें क्या आने वाला है, G1 D2 भी आ जाएगा, G2 B1 भी आ जाएगा एंड G1 B2 भी आ जाएगा, सिर्फ बॉयज वाले नहीं आएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट फर्स्ट द यंगेस्ट इज गर्ल, सेकंड एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B एंड वी हैव आल्सो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by C। हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटी बेटा मेजर करनी है, ठीक है। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B की बात करेंगे, just we are going to find out the probability of A by B. Then probability of A by B, how can we get probability of A intersection B to the probability of B, ठीक है। ये हमारी डिफिनेशन है। क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, we are going to find out both are girls given that the youngest is a girl। तो probability of A intersection B कैसे फाइंड आउट करेंगे, probability of A intersection B, look we have to find out first of all, हमें यहाँ निकाल लेते हैं। द A intersection B में क्या आएंगे, A intersection B में we get G1 G2 मिलेगा, ठीक है। एंड A intersection B C B में चाहिए, A intersection C में भी हमें क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली ये G1 G2 ही आएगा, एक ही ये में तो एक ही इवेंट ही है, तो G1 G2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल 1 है, टोटल कितने, सैंपल स्पेस 4, देन 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B में हमारे पास दो इवेंट हैं, टोटल 4 हैं, इस कैंसिल आउट। जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B इज व्हाट गिवन बाय, क्या प्रोबेबिलिटी हमारी, इज गिवन बाय 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल इज दैट 1/2। देन इट्स अ फर्स्ट सॉल्यूशन देयर। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सेकंड, probability of A is to C, means we are going to find out the probability of both girls given that at least one is a girl. A intersection C is to probability of C. Then probability of A intersection C, we are going to find out probability of A intersection C is what given by probability of, how can we get probability of A intersection C? Probability of A intersection C means we have to get given means 1/4. Probability of C is what, we have 3 events there, 3/4, then we get, after solving we get 1/3. Then our probability is given by, it's given by 1/2 and 1/3, ठीक है। we are going to revise again the question that क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि अगर कोई घर है वहाँ पे if you have to assume that each child is equally likely to be a boy or girl there, then we have to find out probability that both are girls, and given that the youngest is a girl and at least one is a girl, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस फॉर्म कर लिया कि अगर दो ही बच्चे हैं तो या तो दोनों बॉयज दोनों गर्ल्स, या पहला बॉय दूसरी गर्ल्स, या तो दूसरी गर्ल्स पहली गर्ल्स और दूसरा बॉय हो। तो हमने वहाँ पे इवेंट कर ली, बोथ आर गर्ल्स G1 G2, द यंगेस्ट इज अ गर्ल G1 G2 एंड G2 B1, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल G1 G2 G2 B1 एंड G1 B2। देन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by C मीन्स बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल्स दैट गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by C हमें फाइंड आउट करनी थी। देन यूजिंग डिफरेंशियल वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is given by 1/4, 2/4, we get 1/2, and probability of A by C by definition probability of A intersection to the probability of C, probability of A intersection C is given by 1/4 and probability of C is given by 3/4. After solving we get 1/3. Then look, we have discussed problems till now based on our what, conditional probability, ठीक है। अब आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस फाइंड आउट करके सॉल्व करिएगा
नाउ प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ नाउ लुक अब हम चलते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद व्हाट अब हम स्टार्ट करते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक इट्स द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अब हम किसकी बात करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था लुक जब हमने बात की थी बेटा कि हमारे पास सैंपल स्पेस एस है वहाँ पे दो इवेंट्स हैं ई एंड एफ ठीक है अभी तक हम लोगों ने जो बात की वी हैव वन सैंपल स्पेस एस एंड ई एंड एफ आर आवर two events associated with the sample space S then E intersection F क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा E intersection F then our E intersection F denote the simultaneous occurrence of the events क्या डिनोट करता है simultaneous occurrence of the events E and F then the conditional probability of E given that F has occurred is given by probability of E by F कैसे गिवन है इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ठीक है ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है प्रोवाइडिंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैन नॉट बी जीरो ठीक है बेटा एंड ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ probability of f into probability of e by f ठीक है and also if you are going to talking about probability of f by probability of we are going to find the probability of f and e has already occurred then it's given by probability of f intersection e to the probability of e again providing that probability of e cannot be zero then now look from here we get probability of f intersection E is what probability of E is to probability of f by E ठीक है बेटा now look our E intersection f and f intersection E दोनों क्या होते हैं बेटा ये तो दोनों सेम है चाहे f का इंटरसेक्शन E के साथ ले सेम पॉइंट मिलेगा E का इंटरसेक्शन f के साथ ले we get same point then from one and two what we get प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ये दोनों सेम है तो ऑब्वियसली हमारे सेम चीज होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ठीक है तो ये लुक देन व्हाट वी गेट ये हमें मिला यहाँ पे क्या मिला probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F by E is equal to probability of F into probability of E by F तो ये बेटा हमारी इट्स अ व्हाट जो हमारे रिलेशनशिप है दिस रिलेशनशिप एज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थी इट्स गिवन बाय ठीक है जो हमारी रिजल्ट थी इट्स मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ भी बोले इट्स आवर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ठीक अब बस ठीक है रूल्स देखिए ये तो हमने दो पे किया अगर हमारे वी हैव मोर देन टू इवेंट्स अगर हमारे पास अगर थ्री इवेंट्स हैं तो उस पर मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को कैसे जनरलाइज करेंगे देन इफ वी हैव मोर देन इफ यू हैव थ्री इवेंट्स सपोज के हमारे सैंपल स्पेस में थ्री इवेंट्स हैं ई एफ एंड जी हमारे पास थ्री इवेंट्स हैं ई एफ एंड जी अब इस थ्री इवेंट्स पे हमें जनरलाइज करना है किसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम जनरलाइज करना चाहते हैं मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी देन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन एफ इंटरसेक्शन जी ये हमारा इट्स जनरलाइज इसको हम जनरलाइज करेंगे इफ वी हैव थ्री इवेंट्स ई एफ एंड जी देन अ फॉर्मूला इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ बाई ई
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वी हैव टेक जी एंड इज गिवन बाई ई इंटरसेक्शन एफ। इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज करेंगे, देन आवर प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाई, अगर हमारे पास इफ वी हैव 3 इवेंट्स, अगर हमारे पास 3 इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब वैसे इसको 3 हमने भी ई एफ जी 3 इवेंट्स पे इसको डिस्क्राइब किया, ठीक वैसे बेटा आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं 4 से अधिक पॉइंट्स पे भी, ठीक है। देन look till now we have discussed that क्या हमने डिस्कस किया, we have discussed that how can we find out the we have discussed multiplication rules on 3 events। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल्स को डिस्क्राइब किया अपने 3 इवेंट्स पे, जब हमारे पास 3 इवेंट्स ई एफ जी हैं, एंड दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अब इसी बेस पे जो हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल्स थ्योरी के बाद, वो ये कि व्हाट इज आवर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। अगेन एग्जाम्पल स्पेस एस है, वहाँ पे 2 इवेंट्स ई और एफ हैं, देन हाउ कैन वी से दैट आवर 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंस। देखो इन जनरल बात करते हैं, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है मतलब कि अगर आपका इवेंट्स ई हैपन हो रहा है तो वो इफेक्ट ना करे किस पे, हैपनिंग ऑफ एफ। अगर एफ हैपन हो रहा है तो वो इफेक्ट अगर ना करे हैपनिंग ऑफ ई पे, देन वी कैन से दैट the events E and F are mutually independent। The events E and F are mutually independent। ठीक है, बात समझ आ गई। If E and F are 2 events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other, then the events E and F are known as 2 independent events। अगर हम आपकी बात करें, अगर हमारे 2 events independent हैं, हम अगर बात करें कि इफ आवर 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई की बात करते हैं, अगर ये दोनों इवेंट्स ई और एफ इंडिपेंडेंट है, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई हमने मेजर करने गए और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर हो गई, ई मतलब अकर हो चुका है, वो हमें पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिल जा रहा है, कंडीशनिंग दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई थी वो कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट वी हैव, क्या मिला हमें, देन जो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैन नॉट बी जीरो, मीन्स अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि अब जो हमारे गिवन इवेंट्स ई एंड एफ, बोथ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। हमारे जो इवेंट्स है वो क्या बेटा, वो इंडिपेंडेंट्स है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल्स की बात करें तो प्लीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इफ वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से हमें ये मिलती है, देन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमारे क्या होंगे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। मीन्स हमारे 2 इवेंट्स ई और एफ एक दूसरे के हैपनिंग अगर होने पे एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा ये थी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट की कॉन्सेप्ट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ अगर बात करें कि 2 ओवर अगर हमारे ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे किसी भी सैंपल स्पेस के रेस्पेक्टिव सैंपल स्पेस के साथ इफ वी हैव 2 इवेंट्स ई एंड एफ और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री ई एंड एफ बेटा ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, कैसे इंडिपेंडेंट होंगे, चलिए इसको दिखा लेते हैं। क्या बोला हमने, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट थ्योरी की बात करी। प्रोबेबिलिटी अगर 2 इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, तो ये थे हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कॉन्सेप्ट। अभी हमने एक उसमें आपको एक्सप्लेन किया
कि अगर हमारे किसी ये ई एन एफ दो इवेंट्स है एसोसिएटेड विद आवर सैंपल स्पेस एस, तो उनके कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कंप्लीमेंट ऑफ ई एंड कंप्लीमेंट ऑफ एफ ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए तो उसकी बात करते हैं। अगर ए एंड बी ये गिवन है, ठीक है, इंडिपेंडेंस है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है बेटा, अगर हमारे दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट तो ये हमारे पास होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के कंप्लीमेंट। अगर हम ये दिखा दें कि इस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ बी, अगर हम ये शो कर देंगे तो हमारी बात क्या हो जाएगी, ए अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कंप्लीमेंट भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके कंप्लीमेंट्री इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। देन लुक व्हाट वी गेट, वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, we are going to apply here how can we show that our given events are independent or not। तो बेटा इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, आप डिमार्कोस लॉ अगर यूज कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, नाउ वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय यूजिंग विच लॉ, वी कैन सी दिस बाय यूजिंग अ डिमार्कोस लॉ। हमने डिमार्कोस लॉ का यूज कर दिया। अभी इसको क्या ले सकते हैं, अभी याद करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब कंप्लीमेंट की जो सम होती थी बेटा वो क्या होती थी, वो इक्वल टू 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये क्या ले सकते हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बार ऑफ ए यूनियन बी है वो 1 के बराबर होती है। देन वी कैन राइट देन, इससे पहले भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी वहाँ प्रोबेबिलिटी में देखा था, इस कैन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्या लें, इसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो ए यूनियन बी, ठीक, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बेटा क्या होती है हमारी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको एक साथ ले रहे हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, 1 माइनस पी ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ए कंप्लीमेंट। यहाँ से क्या करते हैं, अभी ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवन मान रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस यहाँ क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है, अब यहाँ से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन कर लिया, देन व्हाट वी हैव 1 माइनस कॉमन किया तो 1, ये माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन व्हाट वी गेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या मिलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट कॉमन कर लीजिए, देन वी गेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इनटू बी कंप्लीमेंट। ठीक, तो हमने क्या दिखा दिया, वी हैव क्या एप्लीकेशन दिखा है, इफ वी हैव टू इवेंट्स ए एंड बी एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस एस, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों के कंप्लीमेंट भी बेटा क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हमने क्या देखा, तो इन टुडे वी हैव डिस्कस दैट वी हैव सीन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोर्ड क्वेश्चन से। देन वी हैव डिस्कस ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पे हमने डिस्कशन किया। फिर हमने बेटा डिस्कशन किया किस पे, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद हमने डिस्कशन किया, हमने देखा कि अवर जो व्हेन आवर टू इवेंट्स आर सेड टू बी अ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हमारे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं, इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मींस हमारे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ two events are independent if a probability of A intersection B is given probability of A intersection probability of B, मीन्स हमारे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंस होते हैं अगर एक की हैपनिंग दूसरे की हैपनिंग पे कोई भी इफेक्ट न डाले। ठीक, हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी अकर्ड है तो हम वहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, providing that probability of f cannot be 0, or we are going to find out the condition probability of f upon e is equal to probability of f, providing the probability of e cannot be 0, then इस केसेस में what we have seen that कि हमारी जो इवेंट्स होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर इसको जनरलाइज करें, दो से अधिक पे भी ले जाएं
इफ यू हैव 3 इवेंट्स E F G, अगर उनको दिखाना है इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G मस्ट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो लुक, अब इससे बेस क्वेश्चन आज के लिए लेना पाए, इससे बेस क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।